राइट। तो ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट थी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस वाली। ये सब तो छोड़ देता हूँ, ये सब इंट्रोडक्शन। बस ये कुछ नहीं है, इसमें मैंने ये लिखा है दैट दीज आर सिंपली द डीप हैक्स, और ये 90% टाइम्स काम करेंगे, एंड हार्डली 10 to 15 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट स्कोरिंग लेट्स से इन 80s 85s और 90s, देन दे माइट नॉट हेल्प यू। ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट समथिंग दैट शुड बी डन, एब्सोल्युटली नॉट। ये एकदम दे शुड बी यूज्ड एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कुछ नहीं बचता है, ऑल इन वाली सिचुएशन में इसको यूज करना है। सो स्पेसिफिकली आई हैव मेंशन्ड दैट only use this document if you have consistently scoring, let's say, at least 80 85 in thematic test series. If not, please completely ignore this document and concentrate on revising basic books and notes. So you should be scoring, let's say, 80 85, not only in thematic, let's say in general you should be scoring this much. ठीक है, टर्म्स ऑफ यूज बहुत सिंपल है, मतलब क्योंकि मैंने वो बनाया है तो आई एम जस्ट सेइंग इट ऑल। तो पहली बात, यस ऑब्वियसली हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग। ठीक है, लक वर्क सबको बीट करता है, and nothing beats a dedicated disciplined preparation. Approach presented in this documents look very promising. ठीक है, and I'll illustrate with previous year questions that it is very हमेशा काम करेगा, टू द पॉइंट काम करेगा, बिकॉज इट हैज अ वेरी हिंट साइड वाइज। ठीक है, बहुत मतलब हम पीछे बैकग्राउंड में जाके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, बट एक्चुअल में कितना वर्क करेगा 2022 के पेपर में, नोबडी नोज। सो देयर इज एब्सोल्युटली अगेन एब्सोल्युटली नो सर्टेनिटी दैट दीज विल वर्क दिस ईयर टू। ठीक है, so they should be used as a last resort in the first round. One should strictly again, depend on her knowledge, count the number of questions you think you are likely to be correct, make a judgment, and if you really need these hacks at all. ठीक है, so these are the simple 13 cheat codes जो I have consistently used. इस साल थोड़ा सा फैंसी नाम देके उसको बना दिया है। ठीक है, थीमेटिक में लास्ट ईयर भी बताया था, इस साल भी बताया है। एनीवेज, सो चीट कोड्स हैं। एटमोलॉजी, अगेन एटमोलॉजी सिंपली मीन्स कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, यू ट्राई टू लुक एट व्हाई इट इज नेम्ड सो, और यू ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स। ठीक है, तो वील सी इट। ठीक है, कैसे यूज करते हैं। देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, सिंपली मीन्स दैट all the statements in any question, most of the statements in any question are simply wrong if they contain absolute statements, जैसे कि always, ठीक है, only, ठीक है, must, ठीक है, can, could, these are the these are probabilities, so they are likely to be more true. ठीक है, but if there is something called as must, this must happen, only this can happen, always this will happen, तो इस तरह के जो statements होंगे वो they are largely and mostly 90% of times they are false, until unless, yes, 10% times they are correct, only when they are correct, only when it is a well-known fact. For example, only the elected members of the parliament take part in the presidential election. So it is a very, very known fact. ठीक है, तो इस तरह के जो known facts होंगे उन्हीं में वो only, always, must, can, can नहीं, these extreme statements would be correct. ठीक है, numbers are lying. Numbers are lying simply says that, let's say in a question, in any question, let's say you have two statements, one or two, and one of the statement is giving you number. Okay, then 90% of times that number would be wrong and that statement would be wrong. ठीक है, let's say in a question if you have three statements, 1 2 3, and in two statements, in at least two statements you have data, then at least one would be correct and the other one would be wrong. ठीक है, and if there would be three statements containing number, then again at least one will definitely be true. This is how the trends in UPSC has been, like always they have maintained it, even in 2021 also they have maintained it. So numbers are lying only if one statement is containing data, then it is false. At least two statements are containing data, then at least one would be correct. ठीक है, then reading between the lines, so you have to read between the lines. अब इसका क्या मतलब है, सिंपली रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है दैट यू read the statements very carefully. Let's say there are 2 3 statements and then you read all the statements very carefully and you try to figure out a connection between the given statements, and then you try to read between these statements. Okay, let's say if is it there that two statements are contradicting each other. Sometimes what happens is if there are 4 statements in a question, a lot of times
it so happens that at least two statements would be contradicting, ठीक है. So एक statement अगर correct होगा तो second cannot be correct, and ऐसे करके ही at least one of the option would be gone. तो ये हो गया एक, ठीक है. अभी हम देखेंगे how to ठीक है. बाकी तो बहुत नॉर्मल से हैं, तो जैसे से अपन एग्जांपल देखेंगे तो we'll figure out what it means identify to conquer positivism. So ये तो नॉर्मल सी चीज है that generally let's say if question is about let's say a scheme, ठीक है, so you have to have a very positive approach कि अगर गवर्नमेंट ने किया है तो they must have done something positive, ठीक है. ब्रॉडर एस्पेक्ट को पकड़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग पकड़ के चलनी है, ठीक है. एंड यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, बिगर पिक्चर रादर देन अ वेरी लिमिटेड पिक्चर, ठीक है. डी कंपनी देन साइंस टेक में बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है. सो डी ऑप्शन, बट देन ऑब्वियसली यूपीएससी इज has become a lot of smart these years, so they are ensuring that D वाले गलत हों. So उसके लिए भी how we have to tackle it, we'll see that. तो उसके लिए सिंपल है, वैसे अभी बता देता हूँ, रिवर्स थिंकिंग, ठीक है. रिवर्स थिंकिंग में क्या करेंगे अपन कि we will look कि अच्छा ठीक है, अगर let's say likely वाले क्वेश्चन जो होते हैं, पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें D होता है, then you start looking at the options. एक से जो कोई भी एक स्टेटमेंट से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं सारे कई बार. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट एंड देन यू इन अ रिवर्स ऑर्डर यू स्टार्ट कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट विद द यू स्टार्ट कनेक्टिंग द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऊपर से नीचे पढ़ते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं. सो रिवर्स में यू गो फ्रॉम द नीचे से ऊपर जाओ, डाउन टू अ बर्ड्स जाओ, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या ये सब्जेक्ट के लिए कैन दिस बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो वील सी दैट आल्सो. द मोस्ट ऑब्वियस इज द कल्प्रिट वी मिस. कई बार बहुत बेसिक सा होता है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, बट वी थिंक बिकॉज हम मॉक पेपर्स को ऐसे सॉल्व करते हैं कि नहीं. सो व्हाट हैपेंस इन द मॉक पेपर इज मॉक में वो एक्सेप्शंस पकड़ के बनाते हैं हमेशा, ठीक है. So they will always look out for the exceptions and then they will compile the question in such a way that सारे exception आपके गलत हो जाएंगे. But UPSC is not doing it. वो simple question होगा, simple statement बनाएगी, simple option बनाएगी, ठीक है. So you have to be like no statement is false until unless you have something to say that this is false because of this reason. जब तक आप उसको dispute नहीं कर सकते कि ये इसकी वजह से गलत हो सकता है, तब तक वो statement सही है. This is what it means. सिंपल कि इफ यू कैन नॉट डिस्प्यूट द फैक्ट देन इट इज अ फैक्ट, ठीक है. इंटरचेंजिंग लाइव्स, ओके, तो ये कई 2020 और 2019 में सबसे ज्यादा देखा गया था. सो लेट्स से अ क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट्स 1 and 2. सो व्हाट दे डू इज कि वो 1 के डिस्क्रिप्शन को 2 में डाल देंगे और 2 के डिस्क्रिप्शन को 1 में डाल देंगे, ठीक है. एंड इवेंचुअली आंसर डी हो जाता था. बट यूपीएससी ने इस साल यानी 2021 में इस पूरी ट्रिक को खत्म कर दिया, ठीक है. सारे क्वेश्चन में जिनसे 1 और 2 स्टेटमेंट था, लोगों को ये लगा कि 1 2 में होगा, 2 1 में होगा, बट ऐसा नहीं था. सो दिस एक्चुअली फेल्ड दिस ईयर, ठीक है. बट अगेन ओवरऑल जब तुम इन सबको यूज करते हो तो यू विल बी स्कोरिंग इन पॉजिटिव बिकॉज ये सारी चीजें 90% काम करती हैं. एंड कभी कभी एक से दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कि नंबर्स आर लाइंग इंटरचेंजिंग लाइव्स, ऐसे दो एक साथ फंसेंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है सिचुएशन, ठीक है. वी विल सी दैट अपोजिट्स डोंट गो टुगेदर. तो जनरली क्या होता है कि लेट्स से इन एनी क्वेश्चन, जनरली क्या होता है एक क्वेश्चन में ए बी सी डी, ठीक है. तो एक तो ये होगा दैट लेट्स से इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, सो टू स्टेटमेंट्स इफ दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर देन दे विल नॉट बी गोइंग टुगेदर. कभी कभी ये भी करते हैं वो कि अपोजिट्स सॉरी सिमिलर गो टुगेदर. कैसे कि यू नो लेट्स से कोई क्वेश्चन था, उसका सब्जेक्ट मैटर था, एंड लेट्स से दो ऑप्शन में जो थीम थी, जो ऑप्शन की थीम थी वो सेम थी. जैसे कि 2020 में पारामिताज आया था, तो उसमें दो ऑप्शन में जो थीम थी दैट वाज बुद्धिज्म. देन यू कैन बी 90% ऑफ टाइम ये होता है कि देन इफ टू ऑप्शंस हैव सिमिलर थीम और इफ टू ऑप्शंस हैव यू नो सिमिलर साउंडिंग कीवर्ड्स इन द ऑप्शंस, देन इट इज लाइकली कि आंसर उन्हीं दो में से कोई एक होगा. एंड वी विल सी ये कैसे काम करता है. Then there was a news. So 2020 में ये बहुत काम में आया था. 2021 में मेरे को तो personally a lot of questions I was not knowing the answer, but then I was trying to connect the dots. I was like UPSC खुद पेपर जब बना रही है तो they are referring to the newspapers. वो कोई Google करके नई चीज नहीं लेके आ रहे हैं. So I started counting back the news that was the item that was in the news. ठीक है. And just because
द क्वेश्चन हैड अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, कुछ कुछ एक ऑप्शन वैसा था, एंड जस्ट बिकॉज आई हैव हर्ड कि भाई ये न्यूज में था, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन सही हो गए थे। एक और मैं सही कर सकता था, बट देन अगेन वो नहीं कर पाया। बट देन यू समटाइम्स कठिन करंट अफेयर जो लगता है, यू थिंक दैट दिस इज नॉट फ्रॉम करंट अफेयर, दिस इज सॉरी दिस इज फ्रॉम करंट अफेयर, दिस इज नॉट फ्रॉम स्टैटिस्टिक, स्टैटिक में से नहीं है ये, ठीक है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ये करंट अफेयर में से है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, ये बहुत डिटेल्ड, बहुत ज्यादा डीप करंट अफेयर है, तो व्हाट कुड बी द आंसर, द पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है इसका, ठीक है। देन यू ट्राई टू कनेक्ट द न्यूज आइटम दैट यू रेड, वो भी अगर पीटी 365 में या कहीं पढ़ा है, तो देन ऑल्सो यू कैन प्रोबेबली फिगर आउट द आंसर। इफ नॉट दिस देन नोटा। तो अगर ये, सो बेसिकली व्हाट आर दीज थिंग्स, ये जो पहले 1 से 11 है, these are some of the ways in which UPSC examiner is actually manipulating the statement, ठीक है। तो बेसिकली ये चीट कोड्स का जो कोर आइडिया है वो ये है that every examiner has a very limited opportunity, हर एक एग्जामिनर के पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्टेटमेंट्स को फॉल्स करे, ठीक है। बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा उसके पास मटेरियल है जिससे वो क्वेश्चंस बना रहा है, बहुत लिमिटेड मटेरियल से भी क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट्स को गलत करने के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास। सो देन वो उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम भी एक एग्जामिनर हो और मैं तुमको एक स्टेटमेंट दे दूं, ठीक है, कि यू नो जी लेट्स से GSAT Mark 3 कैन लॉन्च अ सैटेलाइट अप टू लेट्स से 4500 kg, ठीक है। सो एनी सैटेलाइट दैट इज बीइंग 4500 kg कैन बी वो अपना ये GSLV Mark 3 वो उसको प्रोजेक्ट कर सकता है। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं फॉल्सिफाई करना चाहता हूँ, ये तुम करना चाहते हो, तो व्हाट आर द पॉसिबल मैनिपुलेशन यू विल मेक। पहला सबसे सिंपल है 100% फॉल्स करने के लिए, दैट GSLV Mark 3 कैन प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट, कैन ओनली प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट। ओनली करोगे तो जल्दी गलत हो जाएगा, ऑलवेज करोगे या उस डेटा को मैनिपुलेट करोगे, एल्स तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द लिमिटेशन दैट एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर, जो भी एग्जामिनर एग्जाम बना रहा है, कोई भी टेस्ट पेपर बना रहा है, उसके पास ये लिमिटेशंस होती हैं। और ये सारी चीजें वही हैं, दीज आर द थिंग्स जिनसे वो खुद मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आई वाज सेइंग कि 2 ऑप्शन सिमिलर थीम के क्यों डाल रहा है एग्जामिनर, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। एग्जामिनर ये सोचता है कि लेट्स से कुल, ठीक है, कुल बाप, ठीक है, just on the basis of kull lebab, some people can actually एक second, some people can actually try to connect कि ये शायद probably land से related है, ओके। तो एग्जामिनर भी सोच रहा है कि यूजिंग एटमोलॉजी probably some people might get to know कि this kull is related to land। सो उसने क्या किया, 2 ऑप्शन ऐसे बना दिए 2020 के पेपर में, जो लैंड देवर कंटेनिंग लैंड, बिकॉज एटमोलॉजी के बेसिस पे वो, सो 2 ऑप्शन इसलिए बनाए बिकॉज जब उसको ये वो डिड्यूस कर ले कि ये लैंड से है, देन वो ये कंफ्यूज होते कौन सा वाला लैंड। सो इसलिए 2 सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस दे दिए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये सारी चीजें काम करती हैं। सक्सेसफुली काम तभी कर पाएंगे व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक साइकोलॉजी और द बेसिक ट्रेंड्स जो चले आ रहे हैं। अब ये कितना 100% काम करेंगे, वी नेवर नो, ठीक है। तो पहले बता दे रहा हूँ, वी नेवर नो कि इस साल भी काम कर, जैसे कि आई वाज टेलिंग यू कि ये इंटरचेंजिंग लाइव्स वाला, मतलब यूपीएससी ने 2021 में 3 क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया और तीनों क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। सो इट हैपेंस, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, पर 2020 में 3 क्वेश्चन इसके बेसिस पे सही हो गए थे। सो दिस इज हाउ इट इज कि ये सब होता है। अब यूपीएससी अगर सारे ही उसने ये चीट कोड पकड़ लिए और पेलने के मूड में आ गई तो, बट अगेन ऐसे आंख बंद करके नहीं जाना है कि सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहना है। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम इतना बेसिक पढ़ के जाओ कि 85 से 90 तक स्कोर, 90 तो खैर आजकल ज्यादा हो गया, इतने तो आते नहीं, पर एटलीस्ट यू हैव टू मेक श्योर यू आर स्कोरिंग लेट्स से 80 to 85 की रेंज में, देन यू यूज इट, ठीक है। देन यू यूज इट कि भाई अब हम इसको यूज करेंगे, पहले इसको मत यूज करो, पहले अपनी नॉलेज को यूज करो, उसी पे डिपेंडेंट रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एटमोलॉजी का डाला था, बट फिर भी देख लेते हैं, मतलब ये तो डाल रखा था मैंने,
तो सीधा पेपर सॉल्व करते हैं एक बार। ओके, तो ये तो है नहीं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे ठीक है, सारे नहीं करूंगा मैं, कुछ करते हैं। जैसे ये वाला ये देख लेते थर्ड। अभी वैसे तो पता पड़ ही गया होगा, ये मैंने दिखा दिया कि एटमोलॉजी लग रही है। बट अगेन रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर, सो समथिंग जो पहले से हम पढ़ रखा है उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। एंड नाउ यू स्टार्ट, देखो, सर्टिफाइंग द स्किल्स, एंड लुक एट दिस, सर्टिफाइंग द स्किल्स। सो दीज यू डोंट इवन हैव टू रीड इट, ओके, क्योंकि तुमको पता पड़ेगा स्किल्स जिसमें आया मोस्ट प्रोबेबली उसी में से आंसर होगा, ठीक है। देन यू लुक एट सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, यानी ट्रेडिशनल चैनल से आपने सीखी है, एंड देन अब हम उसको सर्टिफाई कर रहे हैं, दैट मींस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट। अब इसमें देखो डी ऑप्शन में, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ये तो कुछ नया हो गया ना, मतलब सो आउट ऑफ दीज टू अगर एटर्नोलॉजी लगाएं तो कौन से वाले के मोर लाइकली है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू यूज इट। ठीक है। देन ऑलवेज ऑल्सो, जो मैं बता रहा था कि ऑलवेज लुक आउट फॉर व्हाट कुड बी द पॉसिबल मैनिपुलेशन दैट एग्जामिनर हैज डन, ठीक है। तो इसमें एक और चीज जो मैं बता दी, रीडिंग बिटवीन द लाइंस में, रीडिंग बिटवीन चौथे वाले में, मेजॉरिटी 90% ऑफ टाइम्स, यू नो, द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय यूपीएससी वुड बी रॉन्ग, ईयर गिवन बाय यूपीएससी वुड बी रॉन्ग, दैट तो नंबर्स में आ गया, द मिनिस्ट्री गिवन बाय यूपीएससी वुड बी रॉन्ग, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, 90% ऑफ टाइम्स। सो इसीलिए रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, रीड वेरी क्लोजली, वेरी वेरी, यू नो, कि तुमको एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। And while reading, what you have to identify is you have to figure out what are the things, what is something that can be manipulated, what is probably the thing the examiner has manipulated. So look at this. Traffic is a bureau, okay, under UNEP. Okay, so again, it could be UNEP, it could be, let's say, FAO, it could be, let's say, the sites. Okay, it could be, let's say, IUCN, it could be IPCC. I mean, it could be anything, right? We have read so many organizations, so it could be anything. Okay. Then the mission of traffic is to ensure that trade is not a threat to conservation of nature. नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है, दिख रहा है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा फोना इन कॉमर्स, ठीक है। सो ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ इज नॉट अ थ्रेट, दिस इज व्हाट, ठीक है। सो अगेन एटिमोलॉजी बता रही है, सो यू आर एबल टू कनेक्ट these the theme of this and this statement, you're able to make a connection between these two, so it is likely to be true, ठीक है। अगर गलत भी होगा तो what is the probability that this statement is wrong? I'm not able to find something that can easily be manipulated in this statement, but let's say, just give me 1 minute. अरे कहाँ गया, सॉरी। हाँ, so what is the probability that this statement is false? You do not have anything that could have been manipulated by the examiner, फिर भी just for the sake of at least 90% से तो ज्यादा ही होगी ना इसकी probability, right? It would be more than 90%. बस तो ऐसे ही करने का कि this is more likely to be true and this might be wrong, ठीक है। तो आंसर इज बी, ओके। so this is how you do it, all right। लेट अस और थोड़ा चलते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। Look at this. Which of the following statement correct regarding monetary policy? ठीक है, it decides RBI benchmark interest rate, ये तो तुमने पढ़ाई होगा, basic knowledge, ठीक है। Then
It is a 12 member. Again, the data could have been manipulated. Bingo, it has been manipulated. ठीक है, खत्म. It functions under the chairman. Again, कौन सी चीज manipulate? Reading between the lines. It could easily be manipulated. So until unless your basic facts are not certifying it, तुम समझो it is a red herring that it is probably manipulated. हो सकता है कि कोई और probably कोई कमेटी इस साल वो पूछ ले, and probably वो let's say GST काउंसिल वो पूछ ले, और तुम सोचने लग जाओ यार ये तो मैनिपुलेट किया हुआ. नहीं, ऐसा नहीं है. कभी कभी सही भी तो स्टेटमेंट देंगे ना वो. बट देन चेक विद द बेसिक फैक्ट्स. बैकग्राउंड में बेसिक फैक्ट भी तुमको पता होना चाहिए. इसलिए बोलते हैं दीज थिंग्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन यू आर स्कोरिंग 80 to 85. लुक एट दिस क्वेश्चन. मणिपुरी संकीर्तन, इट इज अ सॉन्ग डांस परफॉर्मेंस. ओके, ठीक है. सिंबल्स आर द ओनली. अब खुद से सोचो. अब मैंने जस्ट बिकॉज आई हैव सेड कि वो 100% गलत होगा ऐसा नहीं, बट नॉर्मली सोचो कि you are, let's say, you went to some place and you are witnessing song and dance. So what is the probability that in that particular song and dance only one instrument would be used? What is the probability? Bolo. So you एक second, someone wants to. बस सारे फोन आज ही आ जाएंगे क्या? ओके, या सो अगर तुम किसी डांस फॉर्म में गए या कहीं गए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो दैट इज द ओनली थिंग दैट इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, तो ऐसे सोचा करो. सो दिस अगेन इज रॉन्ग. सो दिस इज हाउ यू यूज दीज थिंग्स. ठीक है. अब देखो ये भी देख सकते हो चाहो तो. ऐसे मतलब सारा पेपर ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, हैकाथॉन है. इट हैज नथिंग टू डू विद स्मार्ट सिटीज. ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज स्मार्ट डजंट मीन इट इज स्मार्ट सिटी हो. तो दिस इज हाउ. ठीक है, और देखते हैं इनको. Look at this. In context of solving pollution problems, what is our advantages of bioremediation technique? It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. ठीक है, normal है. मतलब you read it, you understand it. Any containment with heavy metals such as this is can be. ठीक है, can be, that is opportunity है, can be readily, completely. ठीक है. So again, extreme words are not true. ठीक है. Readily, completely treated by, so again obviously wrong है ये. ठीक है. I don't have to explain more on this. कभी कभी ये भी होता है, मतलब आई डोंट नो इस वाले ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन में है कि नहीं है. बट इट विल हैपन. लेट्स से वो लिमिटेशन पूछेगा पर यहाँ पर कोई बेनिफिट बता देगा. अगेन ठीक है, अपोजिट्स डोंट गो टुगेदर वाली चीज. ठीक है, तो देख लेना. समटाइम्स इट इज यूज्ड. अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक मिसलेनियस ट्रिक लगी है, कॉमनलिटीज. ठीक है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज थ्री. इस तरह से that all these are isolated and subterranean in nature. So आंसर हो जाएगा डी. खैर, क्वेश्चन वाज अबाउट कि इनमें से कौन सा जो है वो इट कैन बी यूज्ड फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. सो ऑल द थ्री आर एबंडेंट एंड ऑल द थ्री आर सबटेरेनियन. ठीक है, तो कॉमनलिटी आ गई उनमें तीनों में. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 28. सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है. Question 28. The nuclear summits are periodically held under the aegis of United Nations, so it can easily be manipulated. ठीक है, आराम से कर सकते हो सकता है कोई और हो, मतलब कोई भी करती हो. लेट्स से IAEA करती हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो भी. ठीक है. Then let's look at International Panel on Fissile Material is an organ of International Atomic Energy Agency. So one is wrong and then आप चूज. मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, बट आई थिंक, बट सोचो, जैसे मुझे आंसर भी नहीं पता, स्टेटमेंट भी नहीं पता, तो लेट्स थिंक कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी. इंटरनेशनल पैनल, सो इट इज सम पैनल, इट कुड बी अंडर दिस एजेंसी. फिसाइल मटेरियल,
is an organ of International Atomic Energy Agency. ठीक है. So what is the probability that this statement is correct? I think 50-50 probability है. It could be, it could not be. क्योंकि मेरे पास कोई बेसिक पीछे से बैकग्राउंड नॉलेज इसके बारे में है नहीं. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर कोई ऐसी पैनल आती है ये मैंने कहीं सुनी नहीं है. सो इट इज अ 50-50. बट बिकॉज हम इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 2017 में ये क्योंकि न्यूज में थी ये एजेंसी, तब अपन ने नहीं पढ़ा है. इनफैक्ट मैंने तो पहली बार इसका नाम पढ़ा है. ठीक है, क्योंकि 2017 में आई वाज अ वेरी नोविस गाय, तो मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं ऐसे कर दिया था पहले ही. सो बट आई हैव नॉट रेड इट, सो दिस स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स इन माय ओपिनियन, बट आई डोंट नो द आंसर, तो डी लगाता मैं. ठीक है, बट ठीक है, यू नो. एनीवेज, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर अगला पेपर देखेंगे. सो बिकॉज मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है, एंड दूसरा खुद से भी सॉल्व करना है इन सब चीजों को. इन लाइट ऑफ दीज ट्रिक्स आई जस्ट गिव यू लास्ट मोमेंट पे मैं तुम्हें मौका दूंगा. यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट. इन लाइट ऑफ दीज ट्रिक्स ट्राई टू सॉल्व द पेपर, तो तुमको समझ में आएगा. इंटरनलाइज दीज थिंग्स सो दैट अगर 2022 में जरूरत पड़ती है तो यू कुड यूज इट, बट डू नॉट यूज दीज थिंग्स एट द, मतलब ये नहीं छूटते ही पहला काम यही करना है. डोंट डू दैट. ओके, स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया, मतलब BIS इज मैंडेटरी. ठीक है, फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स. ठीक है, आई डोंट नो, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. एग मार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय फाओ. So again, egg mark, again the organization name could be true or could be false. Based on the tricks, it has to be false. Okay, and it is false. Because egg mark is a domestic quality certification. No, it is not international. BIS is mandatory for automotive tires and tubes. Now this is a very, I think mandatory वाला चीज जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. But what is the probability? Let's look at the probability. अब थिंक अबाउट इट कि हम किसी चीज को BIS में मैंडेटरी क्यों करेंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स यूटिलिटी. व्हाट, जैसे गोल्ड को करेंगे, ठीक है, या लेट्स से एनर्जी एफिशिएंसी में किन चीजों को करते हैं, तो फ्रिज को करते हैं, एसी को करते हैं. सो इट हैज टू बी समथिंग दैट इज कंसिस्टेंटली यूज्ड बाय समवन. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो अगेन प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, मतलब अगेन 50-50 है. यू कैन नॉट मेक अ वेरी कॉन्फिडेंट डिसीजन, नहीं कर सकते हो. सो अगेन आई थिंक इसके लिए मैंडेटरी नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर देन डी. देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है किसी का आंसर गलत भी सॉल्व करूँ, तो बस याद मत कर लेना, बाद में चेक कर लेना क्या सही किया क्या गलत किया. ठीक है, इट इज लाइकली कि हो सकता है ये गलत हो, ये वाला. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ये हो सकता है वो उसके अंडर काम करता हो, बट देन इट इज अ पॉसिबिलिटी, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी. अब लुक एट दिस. Question 39. Quality Council of India was set up jointly by government and Indian industry because it was in news. तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे पता था. ठीक है, आई वाज लाइक हाँ ये होगा. देन तो ये मुझे पता था क्योंकि उस साल न्यूज में था. लुक एट स्टेटमेंट 2 जो मुझे नहीं पता था. चेयरमैन ऑफ क्वालिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट. अब ये स्टेटमेंट क्यों सही होना चाहिए? बिकॉज यूपीएससी एग्जामिनर बैठ के ये स्टेटमेंट नहीं बना सकता. ठीक है, ये नहीं है कि यूपीएससी एग्जामिनर सोच रहा है कि अच्छा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई हैव टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, लेट्स डू टिकड़म बिकड़म इकड़म, वो बैठ के ये गलत स्टेटमेंट नहीं बनाएगा. ठीक है, डू यू हैव एनी इफेक्ट? ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई और हो, लेट्स से यू नो दी कॉमर्स मिनिस्टर हो, लेट्स से प्रेसिडेंट हो. बट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चूंकि एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडिया गवर्नमेंट और इंडियन मिनिस्ट्री दोनों ने सेटअप की है, तो प्रेसिडेंट का कम ही रोल होगा. बिकॉज गवर्नमेंट में लार्जली कौन रोल प्ले करता है? द मिनिस्टर्स. ठीक है, वही प्ले करते हैं ना. सो प्रेसिडेंट का रोल चला गया. और क्या हो सकता है? होम मिनिस्टर हो सकता है, बट अगेन उससे बेटर तो शायद कॉमर्स मिनिस्टर होगा. बट देन किसी मिनिस्टर में पीएम और कॉमर्स मिनिस्टर में देन गेम फंस गया. सो इट इज लाइकली दैट प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे मैनिपुलेट किया हो. स्टेटमेंट तो गलत नहीं है. क्यों गलत नहीं है? क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर बैठ के तो ये पंचायत नहीं करेगा कि मैं स्टेटमेंट बनाऊं और बहुत बहुत यूनिक सी स्टेटमेंट बनाऊं. एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट में ही कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा. एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट, उसके बेसिस पे यू कैन प्रोबेबली टेक अ गेस
ठीक है, अब मतलब कभी ये होता है सही होगा, कभी गलत होगा, तो मतलब हो सकता है इट इज मैनिपुलेटेड कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, शायद और कोई मिनिस्टर है, लेट्स से फाइनेंस मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर है, बट देन अगेन प्राइम मिनिस्टर है, तो लेट्स गो विद दैट। ठीक है, अगेन यू हैव टू टेक अ कॉल। ठीक है, तो यू कैन टेक कॉल, मतलब इधर उधर कहीं भी ले सकते हो, जहां मन करे वहां लो। देन लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंडिया, तो पहला इंडिया में होना चाहिए, फिर 2006 में होना चाहिए, एंड देन उसकी थीम ये होनी चाहिए। सो टू मेनी फैक्ट्स एंड good number of facts means the statement is wrong, because examiner is getting too many opportunities to manipulate you. ठीक है, so definitely that statement would be false. So one is gone. India hosts all the annual ministerial conferences in partnership with, सारे डाल दिए उसने, एडीबी डाल दिया, एपेक डाल दिया, एशियान डाल दिया, सब डाल दिया। अरे भाई ये इंडस्ट्री बॉडी है, कोई बैंक है मल्टीलेटरल, कोई जो है ग्रुपिंग है, सारे लोग इतने साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इतनी चिंदी सी चीज के लिए, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी बड़ी बड़ी बॉडी जाके इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। अगेन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो यू नो, रीडिंग बिटवीन द लाइन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या मैनिपुलेट किया है, क्या साइकोलॉजी रही है एग्जामिनर की स्टेटमेंट को बनाते समय। और एक दो देख लेते हैं, देन 21 वाला देखेंगे फिर, या लेट्स से 20 वाला देखेंगे। ये भी एटमोलॉजी से हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अब ग्लोबल है तो एशियन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, अंकटाड हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, funded that seeks to finance facilitate infrastructure development in the world. World Bank collaboration that facilitates preparation and structuring of complex. This is to enable mobilization of this among the major banks expanding the set of this। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, एक तो OECD है, वो मतलब कोई इस तरह की फैसिलिटी ऑपरेट नहीं करता है। OECD का काम क्या है, फ्रेमवर्क देता है कि ये करो भाई, ये करो, कोई फैसिलिटी लेके नहीं चलता है। वो OECD का सिर्फ इतना काम है, दे विल बी क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क जिसको कंट्रीज अडॉप्ट करेंगी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेके आएंगी, करप्शन को रोकेंगी, यू नो टैक्सेशन को इंप्रूव करेंगी, उस तरह से फ्रेमवर्क बनाता है। सो इट कुड बी वर्ल्ड बैंक और इट कुड बी अनकटेड। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इन दोनों में से ज्यादा सही होने की किसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसे सोचो, एंड देन ऑब्वियसली on any given day if you'll have to choose between World Bank and UNCTAD for some global facility, you will choose World Bank। ठीक है, 70% likely that World Bank, 30% likely that UNCTAD रहा होगा, so go with the World Bank। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, अब इसमें सारे ही स्टेटमेंट ओनली ओनली लेके बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि बिकॉज कहीं किसी एक स्टेटमेंट में उसने एक्चुअल फैक्ट्स पूछ लिए। ठीक है, अभी तो सारे स्टेटमेंट में ओनली है। देन यू हैव टू अगेन चूज किसकी पॉसिबिलिटी है ज्यादा, किसकी पॉसिबिलिटी गलत है। इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, एटलीस्ट हिमालयाज को तो एवरीवन कैन काउंट इट, बैठे बैठे ही काउंट कर लोगे वहां पर। ठीक है, एंड वेस्टर्न घाट्स आल्सो यू कैन प्रोबब्ली काउंट। ठीक है, तो इन दो के बेसिस पे आंसर निकाल सकते हो, बट इट इज अ वेल नोन फैक्ट, पुलिकेट लेक इज बिटवीन द टू स्टेट्स, इट्स अ वेल नोन फैक्ट। लुक एट दिस, ये भी यूएन हैबिटेट के बारे में कुछ कुछ पूछ रहा है। हैज बीन मैंडेटेड बाय दिस टू प्रमोट। अब भाई यूएन लिखा हुआ है, यूएन की आधी से ज्यादा चीजें यूएनजीए से आती हैं, और कौन बना के देगा इसको, यही तो मैंडेट करेगा। ठीक है, फॉर ऑल, अब फॉर ऑल मतलब गलत नहीं है, वो बोल रहा है टू प्रमोट एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, ऐसे वाला सेंस। इट्स पार्टनर्स आर ईदर गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज ओनली। ठीक है, contributes to overall objective reduce। हाँ, मतलब नाम में है ना हैबिटेट, 1 और 3 तो साथ जाने ही चाहिए, 3 से 1 एक्चुअली जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 और 1 एक साथ होने चाहिए, ये तो ऐसे ही चले गए। देन यू लुक एट दिस कि क्या ये इसके साथ करेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता पड़ गया, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। दिस इज हाउ, और थोड़ा पेपर सॉल्व कर लेना, S4A आराम से तुम एपिटोलॉजी से कर पाओगे। यहाँ पे भी तुम ये G20 क्यों करेगा, ठीक है, गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी चेक काउंट करो। सी सेक मीथेन, ये इनमें क्या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होगा कि नहीं होगा,
ऐसे यू ट्राई टू लुक एट द पॉसिबिलिटीज सिंपली, ठीक है। एंड देन लुक एट दिस अगेन, मैनिपुलेशन कहां पर हो सकता है वो पकड़ो। व्हेन आई एम रीडिंग द यू नो द स्टेटमेंट, मैं सर्किल कर रहा हूँ। IOD phenomena is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical western and tropical eastern Pacific Indian Ocean, ठीक है। इतना बड़ा रेंज ले लिया, तो जब वो पैसिफिक ओशन में घुस रहा है तो उसका नाम इंडियन क्यों डाल रहे हो बे? ग्लोबल ओशन डाइपोल डालो ना। उसको पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में दोनों जगह उसका एक टाउन इंडियन में जा रही है, एक टाउन जो है पैसिफिक में जा रही है, ठीक है। तो फिर उसको ग्लोबल ओशन डाइपोल डाल दो, यू नो, यू रीड इट लाइक दिस, ठीक है। देखो ये सारी चीजें काम जरूर करेंगी, बट देन अगेन बहुत रिस्की भी है। सो इफ यू डू नॉट हैव गुड, यू नो, अगर तुम्हारी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है तो जस्ट डोंट यूज इट, ठीक है। अगर बेसिक्स अच्छी नहीं है तो इन सबको यूज मत करो, बहुत रिस्की हो सकता है, वरना मुझे कर जाओगे बाद में। ये कप्तान ने बोला था ये कर लेना बेटा, बर्बाद होके आ गए, ठीक है। मेरे नाम पे लव लेटर आएंगे PM में, अबे ओ कुछ आता जाता नहीं है तुझे, तू ये है वो है, ऐसे करके। एनीवेज, अब 2021 में देखते हैं कहाँ कहाँ यूज हो रही है ये सब चीजें। अब 2021 वाला पेपर बहुत स्मार्टली बनाई है UPSC, ठीक है। अब उन्होंने स्टेटमेंट ही ऐसे चुने हैं जो अब तुम गलत साबित करो बेटा। चलो लेट मी शो यू। अब ये क्वेश्चन देखो, ऑल कैजुअल, ऑल कैजुअल, ऑल कैजुअल, ठीक है, पेजेस ओनली, ठीक है। अब ले लो, अब बताओ आंसर क्या होगा। बट देन अगेन तुमको बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज एक्चुअली स्टेटमेंट 3 की पता होनी चाहिए, दैट ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने ये काम किया था, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था एंड अमेंडमेंट लेके आए थे और खुद को ये पावर्स दी थी। बट देन अगेन अगर ये पता ही है तो तुम क्वेश्चन पढ़ के ही कर लोगे ना। हाँ ऑब्वियसली, इसीलिए तो ये ट्रिक की लंका लगाई ना UPSC ने पिछली साल। ये बहुत ट्रिक मास्टर आ गए, अब हम ट्रिक मास्टरों की लेंगे, ठीक है। बट देन अगेन स्टिल लास्ट ईयर ऑल्सो, मैं बता रहा हूँ आराम से 15 नंबर तुम प्लस लेके आ सकते हो इन इन ट्रिक्स को लेके। खैर, तो चलते हैं, ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, ये कर लेना। मतलब इकोनॉमी में कम ही यूज होती है सब चीजें। लुक एट दिस, जैसे ये है, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट, तो ये गवर्नमेंट लेके ही आया था, ठीक है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेके आई थी RBI, तो ये तो वहीं से हो गए करेक्ट। अब ये देखो यहाँ पे चले गए, लुक एट दिस, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम मैचिंग इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ये है। और CDSL इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड, अब तुमको पता होना चाहिए कि भाई RBI जो है इस वाले स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम नहीं करती है, वो काम करती है सेबी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे RBI और यहाँ पर RBI, तो दोनों में से एक जगह तो होगा। और एक और चीज समझो कि ये वाला काम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए काम करता है और ये इन जनरल स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करता है, तो ऑब्वियसली 3 इज, अब यू चूज विद इन दीज 2 ऑप्शंस कि RBI कहां पर ज्यादा फिट होगा, 2 में ज्यादा फिट होगा या 3 में। और दोनों में तो डेफिनेटली नहीं होगा, अपन ने सीखा ही था, अब बोला था ना मैंने कि सेम थीम्स के साथ आता है तो एक ही सही होता है। Then, अब लुक एट दिस, वाटर क्रेडिट एक बार में हो गया था ये मेरे से, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे पे टाइम कम था, आई रेड वाटर क्रेडिट, आई रेड द स्टेटमेंट दिस दिस दिस, अच्छा ये गलत है, चलो 1-3 आगे बढ़ो। ये भी नहीं पढ़े, ये स्टेटमेंट भी नहीं पढ़े, ठीक है, बिकॉज आई नो कि भाई यही होगा और तो क्या होगा। अब वाटर क्रेडिट है, अगर वो WHO और वर्ल्ड बैंक लेके आती तो हम सुनते ना, हमने सुना ही नहीं है ये, दैट मीन्स कुछ तो ये बकलोली है जो अपन ने सुनी नहीं है। वर्ल्ड बैंक भी करेगी तो कहीं तो सुनेंगे, कुछ लॉजिक होगा। और WHO और वर्ल्ड बैंक एक साथ काम करें, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, ठीक है। मतलब व्हाट आर द ऑड्स फॉर इट, 1 out of 5, 5 में से सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि these two agencies are coming together and working for the same cause directly, indirectly तो करती हैं। what are the odds, look at the odds। R2 code of practices, again etymology लगा दो सिंपल, एक बार में आंसर आ जाएगा, recycling probably। and then वैसे भी ये मैंने इसलिए reinforce कर लिया खुद को कि yes there was this e-waste monitor report that was in news, तो probably उस रिपोर्ट के अंदर
कहीं ये दे रखा होगा R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, इसलिए यूपीएससी ने ये पूछ लिया, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो इनडायरेक्टली उसी रिपोर्ट से पूछा है, बट देन बहुत डीप में जाके. सो यू नो रिकॉलिंग द कॉन्टेक्स्ट व्हाई दिस क्वेश्चन केम. ठीक है, ठीक है, ये रखो. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स they may release lethal quantities of CO into environment. So may है, but then there is lethal. क्या वो lethal हो सकता है? So lethal का मतलब नहीं, ये नहीं होता कि बहुत high quantities. Lethal could be like बहुत small quantities can also be lethal. Okay? ठीक है? Because carbon monoxide बहुत small quantities can also be lethal. Lethal doesn't mean कि बहुत high quantities चाहिए. CO2 की हाई क्वांटिटीज लीथल होंगी, वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की शायद थोड़ी सी में भी लीथल हो जाए चोक करने के लिए. सो अगेन आई डोंट नो क्या है इसका आंसर, लेट्स वेट, वी विल सी. प्रोबेबली डी होगा, कोई उसमें लोड नहीं है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. ठीक है, फर्नेस ऑयल है, ऑयल से ऑयल कनेक्ट करके प्रोबेबली तुम कर सकते हो. सम इंडस्ट्रीज हाँ करती होंगी कुछ. इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशन, हाँ करता ही होगा. ऑयल रिफाइनरी में तो सल्फर निकलेगा ही ना, और कोई भी ऑयल यूज करोगे तो SOX निकलेगा ही, हर जगह से निकलता है SOX. SOX इज लाइक दैट, अच्छे दिन हर जगह से आ रहे हैं. ओके, सो और अटेम्प्ट कर लेना. अगेन लुक एट दिस, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट. इट वाज फर्स्ट endorsed by UN nation in 2014. तो पता नहीं कब किया, तो डोंट नो, but 2014 can easily be manipulated. Let's say it can be, let's say 2015, let's say 1992. इतनी सारी अर्थ समिट हुई है, कहीं तो हो सकता है कहीं और हुआ होगा, but what are the odds? बहुत highly likely that it can be manipulated. It endorses a global timeline to completely end the loss of forest. पता नहीं, let's see. It is a legally binding international declaration. So legally binding बड़े conventions होते हैं, जो 1992 में आए थे उस वाले कन्वेंशन. तो ये तो गलत है, इतना बड़ा कन्वेंशन तो है नहीं. लुक एट 5. इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन. ठीक है, अगर इंडिया होता, इतनी पेपर में पढ़ाई कर रहे हैं हम, अरे होता तो पता पड़ता ना यार अपने को. ठीक है, अपने को पता पड़ता. सो व्हाट आर द ऑड्स बिटवीन दीज टू, 1 and 5? क्योंकि 1 और 5 से आंसर आ रहा है. Let's look at 4 also. It is endorsed by governments, big companies, indigenous communities. So let's not go at 1. Let's look at the odds between 4 and 5. What are the odds कि 4 ज्यादा सही होगा या 5 सही होगा? So मैं बोल सकता हूँ 60-40 हाँ होगा. ठीक है, इंडिया हो भी सकता है, मैंने नहीं पढ़ा है, बट लाइकली कि भाई ये जो गवर्नमेंट्स, यार इंडोर्स बाय द गवर्नमेंट्स, दो गवर्नमेंट भी अगर इंडोर्स कर दें तो काम हो गया. इंडोर्स बाय बिग कंपनीज, कोई भी दो कंपनीज ने कर दिया, इंडिजिनियस कम्युनिटीज ने कर दिया तो काम हो गया. बट इंडिया, ये बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है. सो आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द ऑड्स कि 4 करेक्ट है या 5 करेक्ट है, एंड देन यू मेक अ डिसीजन. ठीक है, अब ये जिसे कॉमन कार्बन मीट्रिक है. सो अगेन ये एक क्वेश्चन है जो मेरा गलत हुआ, क्योंकि मैंने इसको कैसे किया, अगेन यू नो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बिकॉज इट इज अ मीट्रिक. ठीक है, एटमोलॉजी लगाई थोड़ी सी, बिकॉज इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ मीट्रिक. तो ये कुछ मेजर करता होगा, कुछ गाइडलाइंस बनाता होगा बेस्ड ऑन दिस मीट्रिक. समथिंग इज गोइंग ऑन बेस्ड ऑन सम मेट्रिक थिंग. सो बेस्ड ऑन द मेट्रिक असेस कर सकता है. इनेबल द कॉमर्शियल फार्मिंग, इनेबलिंग गवर्नमेंट्स असेसिंग द वर्क. सो मैंने इनेबल तो ऐसे हटा दिया. मैंने सोचा यार this is some metric, so it has to assess something. And then I was like कि broader perspective लेके चलता हूँ. तो कॉमन कार्बन है, तो कॉमन कार्बन तो जो नॉर्मली कहीं पर भी मिल सकती है वो वाली कार्बन हुई, उसके बेसिस पे आई मार्क दी. गलत भी हुआ क्योंकि आंसर ए है, तो कभी कभी गलत भी होगा. ठीक है, ठीक है, बिकॉज आंसर इज ए. सो दैट्स वाई 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स गलत होगा, ये हमेशा गलत होगा, कितना भी परफेक्टली कर लो. इसीलिए यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दीज ट्रिक्स ओनली. 64 योगिनी, अगेन इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल. अरे भैया इंडिया में हजारों टेम्पल हैं, क्या पता कौन सा और टेम्पल सर्कुलर मिल जाए. व्हाट आर द ऑड्स दैट दिस इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल, एंड यू हैव योर आंसर. और ये देखो,
its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. मतलब अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, if this statement is not implicitly correct, it is not implicit in context of this particular temple, then WTF is this statement doing here? ठीक है, ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, तभी तो स्टेटमेंट यहाँ डाला गया है. उसने कुछ पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा ये चीज कि भैया 64 योगी की वजह से पार्लियामेंट में ये सब कुछ हुआ है. एंड देन यू ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स आल्सो कि हाँ भाई नई पार्लियामेंट भी बन रही है, तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट कुछ कहीं कोई न्यूज़पेपर में उसने पढ़ा होगा कि देखो पुरानी पार्लियामेंट की ये हिस्ट्री है, ये पॉपुलर बिलीफ है. प्रोबेबली समवेयर हियर एंड देयर द एग्जामिनर माइट हैव रेड इट, दैट्स व्हाई उसने क्वेश्चन बनाया होगा. द सोर्स वुड हैव बीन दिस. सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स. देन देयर वाज अ न्यूज. ठीक है, ये वाली जो पॉइंट है ना, देन देयर वाज अ न्यूज, क्योंकि ये न्यूज में था. ठीक है, न्यूज से अगर होता तो मैं इसको भी करेक्ट कर देता, पर यहाँ पर मैं आई वेंट विद द गट फीलिंग कि यार ये ब्रॉडर होगा, क्योंकि न्यूज में ये था बिल्डिंग ऑपरेशन वाला. लॉट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, बहुत सारी चीजें हुई थी लास्ट ईयर. ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस भी हुई थी. ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग, नई नई गाइडलाइंस लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत कुछ हुआ था लास्ट ईयर. ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि लाइकली दैट 29 जो है वो आंसर ये होना चाहिए. खैर, बट देन आई वेंट विद डी कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं. लुक एट दिस. English East India Company in the first quarter of 17th century. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 21st सेंचुरी हम 2000 में चलते हैं. ठीक है, तो 17th सेंचुरी मतलब 1600 में कुछ चल रहा होगा. फर्स्ट क्वार्टर मतलब 1600 से 1625 की बात चल रही है. ठीक है, इतनी अर्ली इंग्लिश कहां पर आए थे? वो आए थे सूरत के आसपास. ठीक है, ऑल यू हैव टू गेस इज इनमें से कौन सा नाम सूरत में, ये तो नहीं होगा, पता पड़ गया. ठीक है, देन क्या ये गुजराती साउंड करता है? नहीं करता है, यानी कि आंसर क्या हो गया? ए. ये सब चीजें काम करती हैं, ऐसे ये चीजें होती हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पेपर में. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, बेसिक एटिमोलॉजी अलोंग विद द बेसिक फैक्ट. ठीक है, स्मार्ट एलिमिनेशन. ठीक है, सो दिस इज अगेन सेम जो ऊपर मैंने लॉजिक लगाया, उसी लॉजिक से ये भी आंसर आ सकता है. अब ये भी मैंने डी कैसे लगाया था? आई वाज लाइक कि नुनिज ने वो घूमा, मतलब लाखों हजारों लाखों महिलाओं को देखा होगा. मेरे को सिर्फ एक फैक्ट पता था जो नुनिज ने नहीं लिखा था. ठीक है, जो किसी और ने लिखा था. एंड द फैक्ट वाज दैट विजयनगर पीपल, उनके जो बॉडीगार्ड होते थे वो लड़कियां होती थी. ये फैक्ट मुझे पता था, जो नुनिज ने नहीं लिखा था. शायद सम अदर अब्दुल रज्जाक ने शायद ये लिखी थी चीज. सो आई वाज लाइक कि हाँ, मतलब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि अगर लड़कियां जो हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा बॉडीगार्ड थी, तो रेसल करती होंगी ऑब्वियसली. ठीक है, इसका मतलब तभी तो बनेंगी. एंड देन आई वाज लाइक यार जब कोई बंदी लड़ाई कर सकती है, ठीक है, तो अकाउंटिंग भी करती होगी. ठीक है, बट इट इज नॉट हेल्पिंग माई कॉज. एंड देन आई वाज लाइक या तो अब दोनों 2 और 4 साथ में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. सो दोनों साथ में होने चाहिए, 1 और 3 के वो कहां पर है? द ओनली ऑप्शन वी हैव इज डी, बिकॉज 2 और 4 की हिंदी पढ़ ली मैंने. यहाँ पर लेफ्ट में दिखती है ना, भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र, दोनों तो एक ही चीज है. सो कभी कभी ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपको. ठीक है, दे एक्चुअली हेल्प यू. अब बुरजाहोम आपको पता है ये कश्मीर में है. कश्मीर में कौन सी रॉक को कटाई करेगा इतनी हिस्टोरिकल प्लेस में कि रॉक कट श्राइन्स बनने हैं इतने पहले? आज तो हमारी जान निकल जाती है. तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग. कश्मीर के पहाड़ों को तब कौन काटेगा? इसीलिए लकड़ी का यूज करते थे ना, कि पहाड़ के आसपास लकड़ी का यूज करके उसको यूज कर लिया अच्छे से. सो वन कैन नॉट बी करेक्ट. देन यू हैव दिस. सो दीज आर सम बेसिक थिंकिंग. कनेक्ट करने वाली डॉट्स, कनेक्ट करो डॉट्स को इधर से उधर. So, died in Goa, church is dedicated to him. Was one of the founding members of GSIT order. The feast of Saint, अब ये तो पता था, खैर ये तो काफी मूवीज में भी होता है.
ठीक है, देन यू हैव टू बी लाइक कि क्या ये करेक्ट हो सकता है, सो व्हाट आर द ऑड्स, ठीक है, ऐसे करके देन यू कैन टेक अ गेस प्रोबेबली। ऑल वुमेन तो वो तो कभी नहीं मिलेगा, ऐसे करके। अब जैसे इसमें मैं गलत करके आया कि आई वाज लाइक कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश, तो आई वाज लाइक कि नेहरू जी तो नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो सेकुलर आदमी थे, ठीक है, एकदम रिलीजन से दूर ही रहते थे। देन आई वाज लाइक कि अच्छा चलो ठीक है, एंड आई वाज लाइक गांधी जी भी नहीं करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि यार हमने पढ़ा नहीं, गांधी के बारे में इतना पढ़ रखा है, तो वो भी एलिमिनेट हो, एंड यहीं पे मेरा आंसर एलिमिनेट हो गया। देन आई वाज लाइक कि या तो सरोजनी होंगी या फिर तिलक होंगे, देन आई वाज लाइक कि सरोजनी तो कभी जेल गई नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट गई नहीं है, तो आंसर ए होना चाहिए, बट देन आंसर वाज सी। तो ये गलत भी होंगे, ये लॉजिक्स कभी कभी गलत भी होंगे, बट इन द नेट यू विल बी गेटिंग स्कोर, गुड स्कोर, बट दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू हैव योर बेसिक्स कवर्ड, ठीक है। अगर पॉलिटी और हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस गलत होंगे एंड देन यू आर होपिंग कि ये सब करके मैं पास कर जाऊं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी लकी, लाइक एनीथिंग, वेरी वेरी लकी, लाइक लकी एज मी, ठीक है। Look at this, 21st century, sorry, 21st February, sorry, is declared to be International Mother Language Day. So हो सकता है ये डेट गलत हो, ठीक है, बाई यूनिसेफ, तो दो में से एक फैक्ट गलत हो सकता है। व्हाट आर द ऑड्स कि एग्जामिनर ने ये स्टेटमेंट बनाया और दोनों फैक्ट्स को सही कर दिया। दैट टू यूनिसेफ जो है वो मदर लैंग्वेज में काम नहीं करेगा। इन समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट कुड बी द अदर बॉडी जो यूनिसेफ की जगह काम कर सकती है, दैट कुड बी यूनेस्को, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को कल्चर को, लैंग्वेज मतलब कल्चर, सो यूनिसेफ तो चाइल्ड और एजुकेशन और वुमेन इनके लिए काम करती है, ये सारी चीजों के लिए काम करती है। सो यूनेस्को ज्यादा करेक्ट, ज्यादा एप्ट होगी। तो व्हाट आर द ऑड्स दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज वेरी लेस, द ऑड्स आर वेरी लेस। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन, अब ये सोचो अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो एग्जामिनर कहाँ, मतलब बैठ के उस पर कुछ काम नहीं है, बस वो बैठ के यही काम कर रहा है कि हाँ मैं एक गलत स्टेटमेंट बना के और बैठूं दिन भर और गलत स्टेटमेंट बनाऊं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर रहा है। सो दिस हैज टू बी ट्रू। दिस वाज द न्यूज कि दिदवाना कुछ 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 एंड खाटू, सो खाटू इज सॉल्टी, खट्टा, तो वहां से भी सैलाइन लेक्स आ सकता है। उसके अलावा सैलाइन लेक्स वर इन न्यूज, ठीक है, राजस्थान की सैलाइन लेक्स वर इन न्यूज, ये भी तुम कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये न्यूज में भी थी, तो आ सकता है। अब यहाँ पे भी ये न्यूज में थी सुवर्ण रेखा, बट देन इज इट राइजिंग फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, ये नहीं पता, तो वो तो कभी कभी नहीं भी होगा। ठीक है, ऐसे करके और कुछ, और 2020 का भी एक दो देख लेते हैं, फिर आई जस्ट से बाय। कप्तान, वो एलईडी का क्वेश्चन आप बता सकते हैं हमें, वो कैसे एलिमिनेट, कौन सा एलईडी? जो 2021 में आया था। एलईडी, जी जी। एलईडी एलसीडी वाला? जी, जिसमें वो 360 उसको तो डिग्री हो रहा था। उसको तो एलिमिनेट नहीं किया यार मैंने, वो तो बेसिक फैक्ट पता था, वहीं से सॉल्व किया था वो, तो मैंने एलिमिनेट ही नहीं किया, उसमें क्या एलिमिनेट करना था, नॉर्मल बेसिक फैक्ट पूछ रखे थे ना उसमें। तो कुछ चार पांच क्वेश्चन और लेता हूँ एंड देन फिर खुद से समझने की कोशिश करना एंड इंटरनलाइज करने की कोशिश करना। अगेन डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दीज ट्रिक्स ओनली। अगर तुम 80-85 नंबर नहीं ला रहे हो विदाउट इट, तो फिर दीज आर पॉइंटलेस, क्योंकि वो 80-85 के बाद ही तुमको आगे लेके जा सकती है। तुम सोचो कि एकदम बेस ही मैं इसी पे बनाऊं, मेरी पूरी दुनिया ही इससे बसे, तो ऐसा नहीं है।
ये वो धक्का है जो तुम्हें थोड़ा अंदर लेके आ सकता है, बट इट कैन नॉट बी समथिंग जो 110% तुमको स्टार्टिंग से एंड तक लेके जाए। ठीक है, सो लुक एट दिस। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 3 months। ठीक है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट डेटा। ठीक है, Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of business. So almost all the statements have something that can easily be manipulated. Then you have to simply, अब तुमको पता है 2020 में क्या चल रहा होगा, आधार जजमेंट चल रही होगी जब तुम पढ़ रहे होगे, उसके अलावा क्या चल रहा होगा, प्राइवेसी का आरआर चल रहा होगा। ठीक है, एंड नॉर्मल सी चीज है, आधार जजमेंट आई होगी। ठीक है, उससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट जो कि इन द बैकग्राउंड दैट राइट टू प्राइवेसी इज देयर, देन यू सॉल्व इट। एक बार में खटाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये तो खैर चलो नॉर्मली आसानी क्वेश्चन था। एमपीलाइड्स फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक दिस, तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, करेक्ट होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। स्पेसिफाइड पोर्शन of each MP's fund must benefit SC/ST population. You never know. MPLAD funds are sanctioned yearly basis, and the unused funds cannot be carried forward to the next year. District authority must inspect at least 10% of all works under the implementation every year. So lots of, again, what are the odds कि ये statement correct हो या गलत होगा? ठीक है, so statement 2 जो है that has to be correct. Again, खैर यहाँ तो स्टेटमेंट 2 सब में आ रहा है, बट अगेन द थिंकिंग मैंने देखा नहीं था, अभी देखा, बट अगेन द थिंकिंग दैट आई वांटेड टू टेल इज कि भाई इसलिए करेक्ट होना चाहिए कि एग्जाम में स्टेटमेंट को लेके कहाँ से आएगा, आउट ऑफ द ब्लू ये स्टेटमेंट नहीं बना रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब है वो। अब स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, ये सिंपल नॉर्मल, अगर क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आया था, कोविड टाइम में डिसकंटिन्यू किया था PT 365 में, तो इट्स अ नोन फैक्ट कि ये इकट्ठा होता जाता है, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। सो देन इट इज अ एंटी ट्रिकस्टर्स क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा ट्रिक मास्टर बोलेंगे 10% है मतलब गलत है। ठीक है, क्योंकि 10% कैन इजिली बी मैनिपुलेटेड ऑल्सो। एग्जामिनर हो सकता है कि भाई वो 33% हो, या 5% हो, या 1% हो, या 10% हो। ठीक है, बट अगेन हो सकता है तुम ए भी मार्क कर दो, बट इट इज अ लर्निंग ऑल्सो कि समटाइम्स हो सकता है नंबर भी करेक्ट हो, बट देन यू हैव टू 90% ऑफ टाइम नंबर गलत होगा, ट्रस्ट मी, बट लाइकली कि 10% में भी अगर अपने को पकड़ना है वेदर दिस नंबर इज राइट और नॉट। ठीक है, क्योंकि 10% तुम फंस जाओगे, तो उस 10% में भी ट्राई टू लुक ऑब्जेक्टिवली कि कप्तान इधर पे एटलीस्ट भी मेंशन है ना, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सिर्फ 10 हाँ, दिया रहता तो पक्का गलत है। हाँ, सो अगेन द थिंग इज कि उन ये वाला 10 नहीं, मैं उस वाले 10% की बात कर रहा हूँ। जब नंबर हो तो उन 10% में यू ट्राई टू थिंक वेरी ऑब्जेक्टिवली कि क्या ये पॉसिबल है। देखो 10% इज द ओनली फैक्ट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। बाकी ये स्टेटमेंट तो एग्जामिनर जो है तभी देगा जब उसने पढ़ा होगा, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एग्जामिनर बैठ के तो नहीं ये स्टेटमेंट बना रहा है। यानी कि हो सकता है 10 की जगह कुछ और हो, देन यू टेक अ गेस एंड इज इट। अब जैसे 50% बोल देता वो तो ये गलती हो जाता। ठीक है, बट देन एटलीस्ट 10% तो देन कभी गलत भी होगा। 10% में तुम भी फंसोगे जहाँ पे वो गलत होगा। ठीक है, एनीवेज, पर मैंने एक्चुअली ये गैस कर लिया था। आई वाज लाइक कि यार ये एग्जामिनर ने 10% तो दिया है, आई वाज लाइक ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, बट देन आई वाज लाइक कि हाँ मतलब 10% हुआ यार, मतलब मेरे को बहुत ऑब्जेक्टिव लगा था कि हाँ मतलब 10% को जो है वो इंस्पेक्ट करेगा तो मतलब गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हो। 10% को तो नॉर्मल बंदा जाके कर सकता है। देन आई वाज लाइक दिस ओनली कि हाँ यार ये करेक्ट ही होगा, वरना तो क्यों ही, मतलब 10% इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। 100% हो जाता, 50%, 33%, तो शायद मैं सोचता यार ये बहुत बड़ा नंबर है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये काम दे दिया। तो देन ऐसे सोच के आई मार्क्ड इट करेक्ट। आई वाज लाइक नहीं ये सही है। सो यू लुक एट द ऑब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया आल्सो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। देन और भी क्वेश्चंस हैं जैसे इसमें, लेट्स लुक, पॉलिटी तो आसानी थी, पॉलिटी तो खैर इसमें आसानी थी।
जैसे ये था कुल्लबाब द्रोणबाब, ठीक है, तो अब दो लैंड दे दिया उन्होंने, लैंड और लैंड, इट मींस आंसर किसी एक में ही होना चाहिए, या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। वो कंफ्यूज करना चाह रहा है अपने को एग्जाम में। अगेन परमिताज, ठीक है, तो लुक एट दिस, बोधिसत्व, एक ये था, एक और था, गिल्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये ऐसे था कि फिलोसफिकल स्कूल्स, हाँ, दो फिलोसफिकल थीम्स थी, नॉट डायरेक्टली द बुद्धिज्म, बट थीम्स जो थी वो ये थी, फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटीज ऑफ वेदास इज नथिंग बट बुद्धिज्म, राइट, इजंट इट, ऐसे करते हैं। तो बी या सी में से होना चाहिए आंसर। अब बी होता नहीं है क्योंकि परमिताज नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, श्रमणिक बोलते हैं, पीछे पूछ भी लिया, वो भी पूछा था इन्होंने कहीं, ठीक है, यानी आंसर सी हो गया। ऐसे करके ये अटेम्प्ट किया था मैंने, ठीक है। मेरे नोट्स में भी था, पर इतने सारे नोट्स में नहीं याद रहती है छोटी छोटी चीजें, तो मुझे नहीं याद था तब। अब जैसे इसमें भी ये एंटी ट्रिकस्टर टाइप का है, ठीक है, एकदम मतलब कि वीएलसी विजुअल लाइट, अब बोलेंगे कि यार ये डेटा तो गलत होना चाहिए, बट बेसिक, अब अंधाधुंध नहीं लगाना है कि कहीं भी डेटा आया गलत, ऐसा नहीं होता है। विजुअल लाइट की यही तो रेंज होती है, दैट इज बेसिकली प्रिसाइजली द डेफिनेशन ऑफ विजुअल लाइट। ये नहीं कि डेटा देखा, हाँ भाई गलत है, चलो आंसर डी, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर आके घर पे अरे यार ये ट्रिकस्टर तो गधा बनाते हैं, कुछ नहीं आता इन पे, हमारा तो अटेम्प्ट खराब कर दिया। अरे भाई तुम खुद गधे हो, तुमको पता होना चाहिए ना, विजुअल लाइट इसी रेंज में होता है, ठीक है। तो विजुअल लाइट यूज करेगा ना विजुअल लाइट को, तो क्यों गलत होगा ये। तो अंधा प्यार ना करें कभी, एक्सेसिव प्यार, अंधा प्यार करना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है, वो आपको बर्बाद, बहुत ज्यादा बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक अपना दिमाग, कॉमन सेंस भी लेके चलें, बेवकूफ ना बने। सो स्टेटमेंट वन हैज टू बी करेक्ट, ठीक है। ऐसे तो अगेन खुद से सॉल्व करना आगे, बट देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसे भी फंसते हैं अपन। अगेन लुक एट दिस, तो एक में इवॉल्व लिसा, एक में लीसा पाथफाइंडर, तो आंसर इन्हीं में से होना चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये एक्चुअली नहीं हो पाई थी, वो अभी जाके हुई है, जो बंदे के अंदर हार्ट डाला गया था एंड वो इवेंचुअली मर गया, ठीक है। पर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक नहीं होता, बट द एग्जामिनर इज जस्ट आस्किंग यू कैन इट बी डन और नॉट, यस इट कैन बी डन, थियोरेटिकली इट कैन बी डन। अब कुछ लोग लड़ रहे थे, नहीं नहीं इसका आंसर तो मतलब तीन तो गलत ही होना चाहिए, मतलब छोड़ेंगे नहीं, कत्ल कर देंगे एक दूसरे का, बट देन ही इज जस्ट आस्किंग कैन इट बी डन। वो नहीं बोला एट प्रेजेंट, बोला है क्या, वो नहीं बोला है, वो एट प्रेजेंट नहीं बोला है, ठीक है। कैन इट बी डन और नॉट, थियोरेटिकली इट कैन बी डन। अब ये भी ऐसे ट्रिक से सॉल्व हो सकता है आराम से, ठीक है, देख लेना अपना। इसमें तो काफी ज्यादा, मतलब 2020 में तो बहुत ज्यादा चली थी ये सब, जो 13 जो मैंने बताई ना, ठीक है। 21 में थोड़ा सा रिस्की बिजनेस था क्योंकि फैक्चुअल पेपर था, बट इसमें काफी चला था। तो खुद से अटेम्प्ट करना, और हमेशा लुक एट द बेसिक फैक्ट्स ऑल्सो, कि क्या ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब जैसे ये स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डीसीसीबीज डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू दीज। अरे खुद से सोचो, ये दोनों कंबाइन कर दिए आपने, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज दोनों कंबाइन कर दी, वो इससे ज्यादा ये कैसे हो सकती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ऐसे सोचा करो यार, ठीक है। साइबर इंश्योरेंस, अब उसमें एक स्टेटमेंट था, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर। आप नॉर्मल भी इंश्योरेंस खरीदते हो क्या, नई कार देने का इंश्योरेंस वादा करता है क्या, वो नहीं करता है, ठीक है। आपकी कार टूट जाएगी तो मैं नई कार दे दूंगा आपको, ऐसा नहीं होता है, वरना तो लोग दिल का इंश्योरेंस सबसे पहले कराते हैं।
फिर दारू की जरूरत ही नहीं होती। खैर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, तो ये भी एटिमोलॉजी से हो जाएगा सिंपल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लॉन्ग टर्म, हैज टू बी एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है। हाँ, तो गवर्नमेंट तो सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तो करेंगी ना। एमएसपी, एमएसपी नहीं, ये तो कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, कंजम्पशन है ना ये तो। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल सॉर्ट ऑफ चीज होनी चाहिए, बट ये तो एमएसपी इज अ कंजम्पशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो वन वैसे ही चला गया, बस आंसर आ गया उससे। ठीक है, आईसी रेशो और ये सब सब आसान है यार, ये सब बेसिक है। इसमें भी वही कि द वैल्यू ऑफ शेयरिंग दिस इन लास्ट 5 नेपाल हैज बीन, तो इट कुड बी एनीवन, एंड ये नहीं है, नेपाल नहीं है। ठीक है, ऐसे करते हैं। देन किसान क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म, वो पूछ रहा है शॉर्ट टर्म। और इधर देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज। शॉर्ट टर्म लोन से कौन कोल्ड स्टोरेज बना देगा, मुझे ये बताओ, या कौन घर बना लेगा शॉर्ट टर्म लोन से, और वो भी किसान शॉर्ट टर्म में कैसे बना सकता है? यू आर, छोड़ो, आंसर आ गया एक बार में भी। सो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, पकड़ के चलो उसको। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको लेके पकड़ के एकदम चलो, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी वो मैनिपुलेट कर रहा होगा, कहीं तो सॉल्यूशन, कहीं तो आंसर, कहीं तो कुछ ऐसा मिलेगा जहां से अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा, कावेरी बेसिन, पापी कोंडा नेशनल पार्क क्या कर रहा है वहां पर? और नागरहोल तो होगा ही ना, कबिनी भबिनी ये सब कावेरी बेसिन में ही तो है, कावेरी की तो ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडियन एलिफेंट्स, ये पकड़ो, देखो, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है मेल भी हो। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। खतरनाक। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन टू कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट इज केरला, ये तो पता ही होगा, कर्नाटका है। ठीक है, तो ऐसे करके, एंड देन लुक एट दिस, 22 मंथ, मतलब ह्यूमंस के अंदर 8-9 महीने होता है। सही पढ़ रहा हूँ ना मैं? हाँ, 22 मंथ मतलब समझ रहे हो तुम, 3 बार पैदा हो जा रहे हो तुम। ठीक है, तो इट्स नॉट बिलीवेबल, नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये फैक्ट जो है, ये जो डेटा है, दिस इज बहुत अजीब सा है, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बिलीव नहीं कर सकते इस पर। सो 2 is gone, and then you have the other options, and then you can probably attempt it, जो भी आंसर है। सो ऐसे ही काम करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, खैर देन देयर वाज अ न्यूज के बेसिस पे मैं करना चाहता था, ये दोनों एलिमिनेट कर दिए थे, बट अगेन बर्ड्स एंड एम्फिबियंस में आई वाज कंफ्यूज, मैं डी लगा के आया था, बट देन बर्ड्स आंसर होगा, क्योंकि उस साल अच्छी खासी बर्ड एक कॉन्फ्रेंस कुछ हुई थी। ठीक है, तो बट देन अगेन, अब ये लर्निंग्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अक्सर जो है वो करंट अफेयर से आप फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हो कि इनमें से प्रोमिनेंटली न्यूज में कौन था। ठीक है, कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स साथ नहीं जा सकते, 2 और 4 कहां पर साथ दिखाई दे रहे हैं वहां पे गोली मार दो। ठीक है, एंड देन यू अटेम्प्ट इट नाउ, ऐसे करके। अब देखो ये क्या है, मस्क डियर कहाँ पाया जाएगा, नेचुरल हैबिटेट, तो गंगोत्री और अस्कॉट आसपास हैं, तो ये साथ होनी चाहिए। किशनपुर यूपी में है, और मानस नेशनल पार्क, अब गेस करो, व्हाट आर, इनमें से कौन से साथ आने की लाइक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी कम टुगेदर टू बिकम द हैबिटेट? कंडीशंस भी तो सेम होनी चाहिए ना। मस्क डियर है यार, बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे रहने वाला डियर है। इट्स नॉट लाइक मैं नहीं हूं कि आदमी नहीं है कि कहीं भी मिलेगा, या कुत्ता नहीं है कि कहीं भी मिलेगा। ठीक है, मस्क डियर है, मस्क डियर वेरी स्पेसिफिक, 1 या 2 जगह पे पाया जाता होगा, तभी पूछा यूपीएससी। ठीक है, वरना हमसे क्यों नहीं पूछती, ह्यूमंस कैन बी फाउंड वेयर, ऐसे नहीं पूछती ना। ठीक है,
तो ऐसे probably ठीक है। सोशल कॉस्ट कारण ये हुआ था अगेन, जो लास्ट ईयर कार्बन कॉमन कार्बन मीट्रिक में जो गलती हुई वो इसमें भी मैंने करी एंड इट वाज रॉन्ग। तो हमेशा नहीं सही होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमेशा काम नहीं आएंगी। गुड नंबर ऑफ टाइम्स यू विल फेल ऑल्सो, 10% टाइम्स आप फेल होगे। तो 10 में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत होंगे। 10 में से अगर लेट्स से तो अगर 6 कर लिए, 4 भी गलत किए तो भी तुम्हारा काम हो गया। ओके, तो जो भी है ये कर लेना एंड आई होप ये चीजें इट विल हेल्प यू गाइस। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। So best of luck to you again. थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट सर जी।